अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है जवात हामी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बड़ी स्पेशल गेस्ट। शी हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम लाहौर here in the federal capital Islamabad to cover the much anticipated, much talked about second round of negotiations between the US and Iran. Of course, the second round is also slated to happen here in the federal capital of Pakistan, Islamabad. Islamabad, once again, at the center of global diplomacy. There is a lot of uncertainty. बहुत ज़्यादा speculation है कि शायद ये second round हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. अगर होता है, by any means, if the Iranians and the US delegation both finally come over here in Pakistan once again to sit directly face to face and deliberate upon the outstanding issues between them, तो उसके बाद how is it going to be different from the round one? Is it going to be different from the first round? Is there any sort of an expectation कि second round के end पे when the two parties get off from the table, there is some sort of an agreement, कोई ऐसा framework दोनों के दरमियान क्या तय पाएगा? ये बहुत सारे important सवालात हैं और इनका जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारी वंडरफुल गेस्ट रामीन महमूद. शी इज़ अ वंडरफुल एंकर person associated with one of the leading channels which portrays a very positive perspective and a picture about Pakistan to the outer world. Yeah. That is Discover Pakistan. She has got that grip with the content as well. And look, she is. We are here to talk. We are here to talk about Iran and Okay. US more than me. Okay. Talks हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? हो रही हैं. How are you so I sure? feel. यार, because देखिए, when we talk about, we can't be sure about it, but when we talk about negotiations, the second round, all the people are talking about it, and as the लोगों के Trump बात said, करने से कैसे ये as कंफर्म the होता है? as the Trump said that मैंने वफद भेज दिया है, हमारे important people are coming, and so ऐसे नहीं हो जाता. So there are, so for me I believe कि ईरान की जानिब से जो मिसट्रस्ट एक शो किया जा रहा है, पाकिस्तान has the potential उनको मनाने की, और ये second round जरूर होगा इंशाल्लाह. हम इसको आने वाले एक या दो दिन में लाजमी देखेंगे. It will be happening. Okay, so you mentioned कि US ने प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना डेलीगेशन भेजने की तरफ इशारा किया था उस पोस्ट के अंदर. अभी जैसे देव सिक्योरिटी already yeah, है. so this Yeah. is the confirmation from one side. And but अगर Ramin, Iranian foreign ministry spokesperson Yeah. Mr. Ismail Baghai की बात Yeah. की जाए तो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि जो एक्सेसिव डिमांड्स थी यूएस की जानिब Yeah. से, ठीक है, और जिस तरह से ब्लॉकेट कंटिन्यू किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से डिस्पाइट अ सीज फायर. और हमने देखा था कि मिनिस्टर अब्बास अराची ने ये अनाउंस भी कर दिया था कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ओपन करेंगे. and then the next day they close it. Yeah. बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेड ऑफ द यूएस. Exactly. ठीक है, तो आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि वी हैवंट डिसाइडेड, देयर इज नो प्लान फॉर द नेगोशिएशंस विद द यूएस बिकॉज डिप्लोमेटिक फ्रंट पे द यूएस डजंट सीम टू बी सीरियस. Yeah. अभी तक ईरान के डेलीगेशन की कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि वो इन टॉक्स में दोबारा शामिल होने के लिए वो अपना वफ्द यहाँ भेजते हैं कि नहीं. Basically your question is very important because we are seeing a lot of statements from the Iranian side कि हम लोग जो हैं we will not be participating in it. But one thing that I want to mention here is कि ईरान भी चाहता है कि जंग बंदी हो, और at the same time अमेरिका भी चाहता है, बट ईरान सरेंडर नहीं करना चाहता, जो कि जाहिर सी बात है, उन पर जंग मुसल्लत की गई है. मैं शुरू दिन से एक बात कह रही हूँ कि they have all the right to defend their country because this war was imposed on them by US. उन्होंने खुद जो है वो इसका स्टार्ट नहीं किया था. सो आई थिंक जवाद, फॉर मी, मैंने जैसे कि पहले कहा कि पाकिस्तान हैज दिस पोटेंशियल. ईरान का बहुत ट्रस्ट है पाकिस्तान के ऊपर, और नो डाउट कि 47 आप ईयर्स की हिस्ट्री उठा के देख लें ईरान एंड यूएसए की, तो उनके बहुत सारे खिलाफात हैं. उनको टेबल पर लाना ही एक बहुत बड़ी कामयाबी थी. फर्स्ट राउंड का इस्लामाबाद में होना इस पूरी ग्लोबल डिप्लोमेसी की तारीख में एक सुनहरा बाब है. पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनको उसका क्रेडिट जाता है, और यही वो पॉजिटिव पाकिस्तान है जिसकी बात डिस्कवर पाकिस्तान टीवी हमेशा से करता है कि वी हैव द पोटेंशियल. हम अपनी बेस्ट चीज़ें दिखाते हैं, हम नॉर्दर्न चीज़ें दिखाते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे 5 साल डिस्कवर पाकिस्तान टीवी ने मुकम्मल किए, तो ये उस सक्सेस के साथ साथ ये सक्सेस जो है वो बड़ी अलाइन करती है, क्योंकि हमने हमेशा जो है, मुझे ऐसा कभी कभी लगता था कि आई एम एम्बेसडर ऑफ दैट चैनल बिकॉज यू आर अ फ्रेंड एज वेल एंड कलीग एज वेल, वी रोमिंग अराउंड एंड वी आर टॉकिंग वेरी कैजुअली. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट कि जो पाकिस्तान के पोटेंशियल को इस चैनल ने दिखाया,
उसको जो है वो आज पूरी दुनिया यानी कि आप क्रेडिट ले रही है आज कि पूरी पूरी दुनिया discover देखे Pakistan. आई The एम ऑन द credit बिहाफ 100% ऑफ goes to discover Pakistan. नहीं, What नहीं, about I'm not- Pakistan TV? I am not- What about PTV World? नहीं, What about the state everybody media? everybody We've is been नहीं, doing so I'm much not of saying hard that- work. I mean, this is this not. is this is this he's unfair. from Pakistan TV, so yeah, he's trying to do This it. is But this is unfair नहीं, I'm because- not saying Yeah. just You just don't can't do take that. Okay, 100% don't be a credit. typical journalist. Okay, so I'm saying कि हम जिस पाकिस्तान की बात हमेशा से करते थे, जिसको पोर्ट्रे करते थे, आज वो मौका अल्लाह ताला ने हमें दिया. We are blessed, alhamdulillah. I am very glad to be here at Islamabad, being a Pakistani, very proud. International journalist आज यहाँ पर आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. एक वक्त था जब हमसे कहा जाता था do more, और एक वक्त है जब हमें कहा जा रहा है यार on arrival visa पे we want to go to the Pakistan, we want to witness. तो ये it's very exciting at the same time. Yeah. So if I talk about जो आपने बात की कि ईरान आएगा या नहीं, for me मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान has the potential, और फर्स्ट राउंड करवा लिया तो सेकंड भी हम इंशाल्लाह करवा So देंगे. what do you expect? अगर ईरान का भी डेलीगेशन फाइनली आ जाता है, तो do you expect any major breakthrough at the end of the day? ऑफ कोर्स देखें, जो पहली दफा आए और जीडी में ऐसे जैसे कहा था कि हम एक मुआहदे के बिल्कुल करीब थे, तो इट मींस कि वो जो 21 इयर्स का पूरा एक मुज़ाकरात चले, उसमें बहुत एक दो 21 ऐसी hours. कंट्री एग्जैक्टली 21 घंटों के Yeah. दो ऐसी कंट्रीज जो एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, वो 21 घंटे के मुज़ाकरात के बाद वो ये कहते हैं कि हम मुआहदे के करीब थे, लेकिन कुछ मामलात पे आके वी आर लाइक स्टॉप बॉन, उसने ईरान पे डाल दिया था कि जी वो कुछ अब अगर दोबारा से इसकी बात की तो कोर्स की बात है, इसने बड़े लेवल पे इस तरह ही तो बात नहीं होगी ना. सो इट्स वेरी 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 मच. But you expect कि सेकंड राउंड के बाद ही कोई मेजर ब्रेक थ्रू हो जाएगी, कोई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट? सेकंड राउंड व्हाट डिसाइडिंग होगा, आई कांट से कि ब्रेक थ्रू होगा या मेक थ्रू होगा या क्या होगा, बट इट विल बी वेरी डिसाइडिंग कि वेयर दे वांट टू गो. एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं बहुत अदना सी, एक बहुत छोटी उम्र में अदना सी एक बंदी हूँ, मुझे पर्सनली जिस तरह से आप फ्लुएंटली बोल रही हैं, जिस तरह से इनकी ग्रिप है, लग नहीं रहा, जिस तरह से मुझे लगता है माशाल्लाह कि a lot of grip. इट विल बी लाइक मेक थ्रू इस तरह से होगा कि कुछ बहुत पॉजिटिव हमें देखने को कुछ मिलेगा. पॉजिटिव और जो लोग सेकंड टाइम बैठ रहे हैं, दे बोथ वांट के वॉर खत्म हो जाए, और अब पूरी दुनिया ये इसके चाह अंदर रही है. मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा वॉर फटीग का एलिमेंट भी है, हमें देखने को मिल रहा है. एग्जैक्टली. राइट? सो बोथ द साइड्स आर ईगर टू रीच टू सम सॉर्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, Yeah. और दोनों उस तरह से बैक ऑफ नहीं करना चाहते. देयर इज अ पब्लिक परसेप्शन एसोसिएटेड आल्सो दैट वेरी स्टेक एट द डोमेस्टिक फ्रंट फॉर बोथ द कंट्रीज एज वेल, और उन सारे फैक्टर्स को अगर कंसिडर किया जाए, सो बोथ आर ट्राइंग टू प्ले हार्ड बॉल at the end of the day, but yet at the same time both are eager to do something to achieve some sort of a framework agreement. लेकिन रामीन, अगर worst case scenario में, let's suppose we are hopeful, we are expecting a yeah. major breakthrough, or at least the extension of the ceasefire between the two, or an end to the active hostilities. लेकिन अगर worst case scenario में the Iranian delegation doesn't show up, so what's going to happen then? Where do we stand in the entire scheme of things? ओके, देखिए हमारी, मुझे ऐसा लगता है कि इफ वी टॉक अबाउट कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा होगा, तो इट विल बी वेरी बीइंग अ पाकिस्तानी, ये हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो एफर्ट्स वी आर डूइंग दैट्स इनफ ऑफ इनफ. 100 से भी ज़्यादा %. पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री के अंदर ये कारिश नहीं था, और ना ही कोई कंट्री ये कर सकता था जिसका ईरान पे भी ट्रस्ट हो, अमेरिका भी उस पर ट्रस्ट करता हो कि वो इस तरह का फर्स्ट राउंड करवाता या दूसरे राउंड के बारे में जाता भी. अगर ये फेल होना या कामयाब होना, इसमें पाकिस्तान की ना तो नाकामी है और ना ही हम इसको ऐसे कह सकते हैं. लेकिन ये है कि वॉर जो है पूरी दुनिया में पीस का जो प्रॉब्लम है वो हमें नजर आएगा. पूरी दुनिया में इसके जो इम्पैक्ट्स हैं, जो ऑलरेडी आप सामने देख रहे हैं, महंगाई हो रही है यार, अमेरिका का इतना नुकसान हो चुका है, ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जिस तरह से, ईरान का इतना नुकसान हो चुका है. तो बीइंग ह्यूमन एज वेल, पाकिस्तानियत और वो बात चीजें छोड़ते बीइंग ह्यूमन, आई पर्सनली वांट कि दिस should be stopped now. So everybody is praying for that, everybody let's hope for that. लेकिन at the same time if I talk about कि अगर ये नहीं हो जाता तो फिर क्या होता है, कुछ नहीं होगा, थर्ड राउंड की तरफ जाएंगे, बातचीत चलती रहेगी. नेगोशिएशंस इसी का नाम है, नेगोशिएशंस इसी का नाम है. एक दफा आप बात करते हैं, आपकी बात नहीं सुनी जाती, दूसरी दफा करते हैं, तीसरी दफा करते हैं. For example, It's never do Iranian and die. delegation also comes. Okay. There happens to be a round of negotiations. Okay. At the end of the day, there is nothing that is agreed upon. Okay. So do we anticipate the resumption of hostilities again? फिर से जंग स्टार्ट हो जाएगी दोनों की? क्योंकि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं कि अगर ईरान डील नहीं लेगा तो उनके जितने एनर्जी प्लांट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा,
उन्होंने ये भी कहा कि उनके सारे जो पुल हैं, ब्रिजेस हैं, उनको yeah. उड़ा दिया जाएगा। और ना सिर्फ ये, उसके रिस्पॉन्स में जो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उसने भी कहा है कि वी हैव द न्यूअर टैक्टिक्स, न्यूअर इक्विपमेंट, वी आर ऑल्सो लोडेड। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो पहली दफ़ा दुनिया देखेगी और अमेरिकन को पहली दफ़ा देखने में मिलेगा कि हमारी आई थिंक वो एक आपने शायद पढ़ी होगी हेडलाइन दैट उसने एक ट्रम्प ने जब एक्स पे एक स्टेटमेंट दिया, होल सिविलाइजेशन विल डाई टुमारो टुनाइट और समथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद आगे लिखा, अगले दिन न्यूज़पेपर में छपा पाकिस्तान के कि पाकिस्तान सेव्स द होल। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प तो जो है वो किसी ने मीम भी बनाई हुई थी ऑन अ लाइटर नोट कि वाईफाई बंद कर दो व्हाइट हाउस का। सो इस तरह की टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स वेरी इमेच्योर बीइंग अ प्रेसिडेंट। इफ यू एक्चुअली वांट पीस ना, तो फिर आप इस तरह की जो कम्युनिकेशन है या वो चीज़ें, तो ये दोनों साइड से एग्रेशन भी साथ साथ चल रहा है, नरमी भी साथ साथ चल रही है, और इसी तरह होता है गर्म ठंडा चलता रहता है, वो कब ठंडा सबक ले जाए कब गर्म सबक ले जाए। तो इट्स ऑल अबाउट दिस। तो हम कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, बट फॉर मी आई थिंक दे विल अराइव एंड आई बिलीव, आई ट्रस्ट एंड आई होप दे विल अराइव, और ये होने जा रहा है, इंशाल्लाह होगा। Okay, And so Islamabad is ready for it. Islamabad is pretty much ready for it. There is We are heightened always ready. security, extended red zone है, और there is a huge troop deployment also, और the government is ensuring जिस तरह से पहला round successful हुआ है in terms of a provision of the security, so this round also goes through like that Yeah. on the very same Inshallah, lines as well. inshallah. Ramin, one last question. When we talk about the positive side of this, कोई डील हो जाती है, कोई फ्रेमवर्क अग्रीमेंट हो जाता है, a Inshallah. number of issues are resolved between the two. उसके बाद आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा था, और आपको ये भी याद होना चाहिए कि ये जो स्टोरी थी मैंने ब्रेक की थी कि मुझे बिल्कुल याद है कि प्रेसिडेंट बिल्कुल ट्रंप जो है वो, कुछ लोग ये स्पेकुलेट कर रहे थे, ये खबर भी दे रहे थे कि वो शायद निगोशिएटिंग टीम को लीड करेंगे सेकेंड राउंड में। Yeah, लेकिन yeah. मेरी स्टोरी वाज डिफरेंट। मेरी स्टोरी ये थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे, लेकिन वो निगोशिएटिंग टीम को लीड नहीं करेंगे, बल्कि JD Vance once the deal is agreed, yeah, तो उसके he will बाद come to sign the deal. he will come to celebrate that success of the entire negotiation process, और पाकिस्तान को मुबारकबाद देने आएंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की टॉप अथॉरिटीज इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल दोनों की तारीफें की हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान का बायलैटरल रिलेशनशिप यूएस के साथ अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस ट्रैजेक्टरी पे गया, इट हैज टच्ड न्यू हाइट्स, रीशेप हुआ है, कंप्लीटली ओवरहॉल हुआ है, और प्रेसिडेंट ट्रंप इस वजह से भी पाकिस्तान आएंगे। और अगले ही दिन ऑलमोस्ट 24 या 36 घंटों के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए इस बात को कंफर्म किया था कि अगर इफ द पीस डील इज साइंड इन इस्लामाबाद, ही माइट गो टू Yeah. पाकिस्तान। Pakistan, exactly. अगर वो Islamabad. पाकिस्तान आते हैं, उस सिनारियो में क्या होने जा रहा है, खास तौर के ऊपर ऑफ कोर्स एक पीस डील तो साइन हो जाएगी, ठीक है, वो तो एक बड़ी सब्सटैंशियल एक आप समझिए डेवलपमेंट होगी। What would be there for Pakistan in terms of the bilateral relationship अच्छा, between to me, Pakistan if and the Trump US? is coming or not, that's not a question. For me, आपने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की थी, और hopefully ऐसा हो। I think so, because वो इसको reconfirm भी कर चुके हैं। But for me, it's more like कि regime पाकिस्तान करवाता है, तो उसके बाद ईरान को चाहिए कि वो गैस और ऑयल पाकिस्तान को फ्री मिले, हमारे लोगों को फायदा हो। That's more अच्छा, इसमें ये near to my heart. Then he should come. That's the world will see that the American president will come and thank Pakistan for the negotiations. Yeah. क्या हो सकता है? A country, third world country, who was always asked do more. Yeah. वर्ल्ड ऑन टेरर के अंदर और अपने खास बच्चों तौर की पे जाने जिस तरह दी से है, प्रोपेगेंडा अपने सिपाहियों की इंडिया की जाने जानिब दी से है। हमेशा जारी रहा, भाई, पाकिस्तान हमने को बहुत आइसोलेट ज्यादा- करने की बात की हमारी जाती फौज रही, ने बहुत कुर्बानियां दी या हैं, हमारी फौज ने आर्म्ड कुर्बानी, फोर्सेस ने, I हमारे mean, सिविलियंस civilians ने, also, our Exactly. economy also suffered So, 100 and over $100 This billion is the time to losses to the celebrate. economy. This is the time to celebrate. Yeah. और And अल्लाह खास तौर करे पे- कि ये पीस हो जाए, तो then when we will be traveling abroad and when we will be going everywhere, I will always be putting my the Pakistan name to pride and saying we are peacemaker country. That's Yeah. what I want, and that's what we are. So we are ending with it. I think this is all that I have to say. Yeah. Thank you so much for having me, Yeah. and Ramin I think we should Mahmood, continue with our always a to walk. wonderful speaker. And you're I always get to- being a wonderful host, I must I say. get to learn a lot from her Oh, all the Bhaskar, time. though, yeah, he's ठीक है? so- She's he's so so best. fluent.
आई एम नॉट फ्लुएंट विद उर्दू, मैं अड़ फंस जाता हूँ मैं उर्दू बहुत बुरी बोलते हूँ। हुए। अभी सुबह मुझे किसी ठीक ने है? कहा उर्दू और अंग्रेजी पे और काम करे, तो आई विल वर्क ऑन इट। वी ऑलवेज लर्न एंड not only that, she's full of energy. She's confident. आई एम एक्चुअली अ लवर ऑफ She's पाकिस्तान। super clear with her thoughts, Yeah. the stream of consciousness, and she's mashallah doing wonderful. She's young, and way to go for her. Yeah. Lots of best wishes for you, Rami. Thank you so much. And thank you Best very much wishes for showing you. up here And as best of well luck in the Federal Pakistan, best Capital. of luck Islamabad.